Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Mitra Wafaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. Dear students of class metric, in the last video lecture, we started our chapter number 15, An African Village, from our book, Secondary Stage English Book 2 for class metric. Today in this video session, we will discuss this chapter in detail. I will read and explain this chapter to you people so that you should be able to understand what information about a village is given here in this chapter. This chapter, as the title says it all, An African Village, is all about the village life, the different aspects of village life anywhere in the world, particularly or especially a village in Nigeria. Nigeria is actually an agricultural country of South Africa, and this is an African country, and in that African country we are discussing about the village life of a village. I will first read two paragraphs as sample reading. You people need to listen to me and to my intonation, that how I am pronouncing each word and where I am keeping my voice up and down, where I am giving pause, where I am stopping for just a second, and where I am stopping for 2 or 3 seconds. Okay? First paragraph. After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. Its northern parts have had relations with Europe in Asia for many centuries, but very little was known about other parts till the middle of the 19th century. No wonder it was called the Dark Continent once. Paragraph number 2. The village life anywhere in the world is closely associated with agriculture. So is a village in Nigeria, which is mainly an agricultural country. Nigeria is the largest country of West Africa and is the most thickly populated of all the African countries. Most of its inhabitants are farmers who live in villages. A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bush in the north. The bush consists of scattered trees with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. The farmers' settlements or villages are scattered in the bush where they cultivate the land. I have done some sample reading for you people. You may also try to read as I have read. Now I will explain you this chapter paragraph by paragraph. Inshallah ta'ala, we will be covering half of the passage today in this video session and the remaining half in the next video session. After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. दुनिया में my dear students, सबसे बड़ा जो continent है, पहले तो आपसे ये डिस्कस करूं कि दुनिया में continents कितने हैं. जी, दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं, कितने continents हैं? Somebody said 3. Oh no, it's not 3. There are 7 continents in the world. The world is divided into 7 continents. हमारी दुनिया 7 बर्रे आज़मों में तक़सीम हुई भी है. उनमें से एक एशिया है जिसमें हम रहते हैं. और fortunately, Asia is the largest continent of the world. दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है. और एशिया के बाद सेकंड नंबर पर अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इस अफ्रीका में 35 आज़ाद ममालिक या कह ले रियासतें हैं. तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, containing around 35 independent countries. ठीक है जी? Its northern parts have had relations with Europe and Asia for many centuries.
इसके जो शुमाली इलाका जाते हैं, शुमाली इलाके हैं अफ्रीका के, उनके पॉलिटिकल या इंटरनेशनल या इकोनॉमिकल जो भी ताल्लुकात आप कह लें, इनके रिलेशंस, इस नॉर्दर्न एरियाज़ के रिलेशन, ये जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न एरिया है इसका यूरोप से और एशिया से रहा है काफ़ी सदियों से। बट वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट अदर पार्ट्स टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन 1940s और 50s से पहले इसके दूसरे हिस्सों का कुछ अता पता ही नहीं था। दुनिया जानती नहीं थी कि अफ्रीका के नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा जो एरियाज़ हैं इनमें है क्या, दुनिया को पता ही नहीं था 1940s 50s तक। 1940s 50s के बाद जाकर हमें कहीं पता लगा है। तो हमें चूंकि अफ्रीका के इन नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा कुछ पता ही नहीं था कि इसमें है क्या, तो इसको हम कहते थे डार्क कॉन्टिनेंट। इट वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट वंस। उस जमाने में ये डार्क कॉन्टिनेंट कहलाया जाता था। The village life anywhere in the world is closely associated with agriculture। दुनिया में कहीं भी जहाँ गांव देहात हैं वहाँ उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है गांव देहातों की, वो होती है एग्रीकल्चर। तो गांव देहातों में अमूमन लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ज़राअत खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जी फल उगाते हैं और वो खाते भी हैं और वो सेल आउट भी करते हैं, बेचते भी हैं। तो नाइजीरिया, सो इज अ विलेज इन नाइजीरिया विच इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। नाइजीरिया भी एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका का, नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका। नाइजीरिया जो है वो वेस्ट अफ्रीका यानी कि मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है एंड इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज। और ये जो मैंने आपको अभी बताया कि अफ्रीका में कमोबेश 35 आज़ाद ममालिक हैं, 35 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनमें से नाइजीरिया सबसे बड़ा मुल्क है और थिकली पॉपुलेटेड है। इसमें अच्छे खासे लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर फार्मर्स हु लिव इन विलेजेस। और ये जो नाइजीरिया के अक्सर बाशिंदे हैं, अक्सर बाशिंदे किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं और गांव देहातों में रहते हैं। A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into the bush in the north। और नाइजीरिया का जो एक बड़ा हिस्सा है वो जंगलात पर मुश्तमिल है, घने जंगलात पर मुश्तमिल है। और ये घने जंगलात आगे जाकर नॉर्थ की तरफ जाकर झाड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर शुरू में तो बहुत ही घने दरख्त हैं, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ये दरख्त कम होते जाएंगे और झाड़ियाँ ज़्यादा होती जाएंगी, जहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, एक पूरी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर आबाद है। द बुश कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज विद हैवी अंडरग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ थिक बुशेस एंड ग्रास। और ये जो बुशेस हैं, ये झाड़ियाँ हैं, इसमें बहुत सारे दरख्त भी हैं फैले हुए और घनी झाड़ियाँ भी हैं वहाँ पर, और घास फूस भी है, घास भी वहाँ पर उगी हुई है। द फार्मर सेटलमेंट्स और विलेजेस आर स्कैटर्ड इन द बुश वेयर दे कल्टीवेट द लैंड। और ये जो बुश है, ये जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ी वाले इलाके हैं, इसी में जगह जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर किसानों की फैमिलीज, किसानों के ख़ानदान आबाद हैं और उनके पूरे के पूरे गांव आबाद हैं जगह जगह, जहां पर वो ज़मीन काश्त करते हैं, फसल काश्त करते हैं, ज़मीन को हमवार करते हैं, ज़मीन को कल्टीवेट करते हैं ताकि वो फल और सब्जियां उगा सकें। पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 55। दीज विलेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम आवर विलेजेस। और एक मज़े की बात कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे विलेजेस हैं ना, इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब में बहुत गांव देहात है ना पाकिस्तान में भी। लेकिन ये जो नाइजीरिया के विलेजेस हैं, गांव देहात हैं, ये हमारे गांव देहात की तरह नहीं है।
A Nigerian village may consist of a dozen to about 3 dozen huts. नाइजीरिया में एक जो गांव या देहात जो कहलाता है ना, वो कोई पूरा गांव बहुत बड़ा इलाका नहीं होता, बल्कि तकरीबन a dozen means 12 हर्ट्स या तकरीबन 36 3 डजन, 1 डजन से लेके 1 डजन से लेके 3 डजन तक यहाँ पर हर्ट्स होते हैं। और इनको ये गांव इन तकरीबन 12 से 36 हर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। यूं कह लें आप कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 ख़ानदान आबाद होते हैं 30-36 हर्ट्स में, और कितने ख़ानदान आबाद हो सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे गांव देहात होते हैं, हमारे गांव देहातों की तरह नहीं है कि जहाँ पर एक बड़ी जगह है और वहाँ पर पूरी आबादी है। यहाँ पर नाइजीरिया में जहाँ जहाँ बुशेस थोड़े से थिन हैं, पतले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने नहीं है, तो वहाँ पर किसानों ने आबादी कर ली है, आबाद हो गए, 2-2 3-3 4-4 खानदान आबाद हुआ और एक गांव बन गया है, ठीक है। These herds are separated from one another by cultivated patches of land. और ये जो हर्ट्स होते हैं 12, 15, 20, 25, 30 या 36 हर्ट्स जो होते हैं, ये हर्ट्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। और हर हर्ट के अतराफ में एक लैंड होती है कल्टीवेशन के लिए, और कल्टीवेटेड पैचेस होते हैं, यानी कि काश्त किए हुए टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े जिस पर मुख्तलिफ चीज़ें काश्त की हुई होती हैं। कहीं पर बैंगन, कहीं पर आलू, कहीं पर प्याज काश्त हुई हुई है, कहीं पर फल वगैरह काश्त हुए हुए। तो जब आप इसका बर्ड्स आई व्यू लेंगे ना, ऊपर से देखेंगे इसको हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से, तो आपको बड़ा ही खूबसूरत मंजर दिखेगा कि हरियाली है और उसके बीच में जो है वो लोग आबाद हैं छोटे छोटे हट्स की सूरत में, और उन्होंने अपनी लैंड्स कल्टीवेट की हुई हैं, अपनी ज़मीनें कल्टीवेट काश्त की हुई हैं, कोई सब्जी उगा रहे हैं, कोई फल उगा रहे हैं, कोई कुछ उगा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर लगता है। Since the huts are not situated close together, चूंकि ये हट्स बहुत करीब करीब नहीं हैं बल्कि थोड़े थोड़े फासले पर हैं, there are no streets or lanes, कोई सड़क या कोई गली वगैरह टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पर। Unlike our cities और villages, आज तो आप हमारे गांव देहात में जाएं, इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में, तो आपको वहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम दिखेगा। गांव देहातों में भी सड़कें दिखेंगी, गलियाँ दिखेंगी, और आपको दुकानें दिखेंगी, मार्केट दिखेगी कि हमारे गांव देहात है। नाइजीरिया की गांव देहात ऐसे नहीं होते हैं। नाइजीरिया की गांव देहात बहुत ही टिपिकल होते हैं, कोई गली कोई सड़क नहीं, बल्कि दूर दूर हट्स बने हुए, बस यही गांव है, खुला मैदान में हट्स बने हुए हैं, यही गांव है, कोई गली नहीं है, कोई सड़क नहीं बनी हुई है, ठीक है। They are joined by bush paths which may lead to other villages in the same bush area. और ये जो गांव देहात होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, कि ये लोग इसमें झाड़ियों के बीच में ना रास्ते बना देते हैं, झाड़ियाँ थोड़ी काट काट के रास्ते बना देते हैं, और इन्हीं रास्तों से एक गांव से दूसरे गांव तक आप जा सकते हैं। Formerly a farmer's hut was a single room. पहले क्या होता था कि फार्मर, ये जो नाइजीरिया के विलेजेस की बात हो रही है, keep it in your mind. You people have to remember that we are talking about a village or village life in Nigeria, in Africa, okay? Not the village life here in Pakistan. Formerly a farmer's hut was a single room. पहले फार्मर का जो पूरा का पूरा हट होता था वो एक ही कमरे पर मुश्तमिल हुआ करता था। It was built very simply, बहुत सादा सा बना हुआ होता था। Thick branches of trees were stuck in the ground in a large circle. बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी ब्रांचेस होती थी, शाखें होती थी दरख्तों की, उनको ग्राउंड में, जमीन में अंदर डाल देते थे, खोद कर ना, जमीन खोद कर अंदर डालकर और फिर मिट्टी डाल देते थे और एक सर्कल की सूरत में बना लेते थे। तो क्या होता था कि वो उसके बीच में जगह हो जाती थी, ठीक है। These branches were joined at the top and bound firmly together. और ये जो ब्रांचेस होती थी ऊपर से इनको बांध दिया जाता था। तो क्या होता था कि सर्कल टाइप का हट बन जाता था और अंदर उसकी एक स्पेस होती थी।
Thus a cone shaped room was made, और इस तरह इनका जो हट होता था वो एक कोन की शक्ल में एक रूम बन जाया करता था. The space between the branches were filled up with straw and the roof was also fetched with a thick layer of straw, grass, reeds or palm leaves. और ये जो ब्रांचेस के बीच की जो जगह होती थी, जो कि दूर ब्रांचेस सर्कल की सूरत में लगा देते थे और ऊपर से उनको बांध देते थे, तो वो एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेता था. और ये ब्रांचेस की बीच की जो जगह होती थी, ऑफ कोर्स यहाँ जगह रहती थी ना, इससे रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, लोग आते जाते लोग भी देख रहे हैं, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है. तो वो क्या करते थे कि इनके बीच में स्ट्रॉज, यानी कि इसके जो पाम लीव्स, आपने देखा होगा नारियल के दरख्त के जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, उनसे इस जगह को, बीच की जगह को ये भर देते थे. A narrow opening was left for entrance on the side towards the sun. और जहां से सूरज निकला करता था ना, मशरिक की तरफ वो थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे. ये जगह इनके आने और अंदर कमरे में, हट के अंदर आने और जाने के लिए होती थी, दरवाजे टाइप की थोड़ी सी जगह ये छोड़ देते थे. ठीक है. नाउ बिगर एंड बेटर हट्स आर बिल्ट, लेकिन अब जो है वो बड़े और अच्छे, मजीद बेहतर हट्स बनाए जाते हैं. एंड मोर मॉडर्न बिल्डिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स आर यूज्ड, और अब ये लोग सिर्फ इसी से नहीं, ब्रांचेस से नहीं, या स्ट्रॉज या पाम लीफ से नहीं, बल्कि मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल जो है, जिसको हम रेती, गारा, सीमेंट, बजरी कहते हैं, इन सब चीज़ों से भी ये अपने हट बनाते हैं. अ फार्मर्स हाउस में नाउ हैव 2 or more रूम्स. अब जो किसान के घर में 2 या 2 से ज़्यादा कमरे हुआ करते हैं. पहले एक कमरे पर मुश्तमिल होता था उनका हट, अब 2-3 कमरे उनके हट में होते हैं. इट इज़ बिल्ट राउंड अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की सूरत में ये तामीर किया जाता है. सम ऑफ द रूम्स हैव 4 वॉल्स विद अ डोर ओपनिंग ऑन टू द कोर्टयार्ड, और कुछ जो कमरे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी चारों तरफ से दीवारें होती हैं, और कोर्टयार्ड की तरफ, इनके बागीचे की तरफ एक दरवाज़ा ये लोग निकाल देते हैं. हर कमरे से उस बागीचे में आया जा सकता है. While others have only 3 walls with a veranda, जबकि कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिसमें 3 तरफ तो दीवारें होती हैं, चौथी तरफ की दीवार नहीं होती, बल्कि वो वरांडे में ओपन होती है. वरांडा जो सहन होता है, तो सहन में, सहन की तरफ कोई दीवार नहीं होती. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस कमरे में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आप इमेजिन करिए कि जिस दीवार में दरवाज़ा है, अगर ये पूरी दीवार ना हो, बल्कि आपके लेफ्ट, राइट और बैक की तरफ ये 3 तरफ की दीवारें हों, और ये जो फ्रंट आप जो दरवाजे वाली दीवारें पूरी की पूरी दीवार ना हो, तो आप कैसा फील करेंगे? ये कमरा तो बन जाएगा, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वो वरांडा में, सहन में ओपन एक्सेस होगा, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं. द वॉल्स आर मेड ऑफ वुड एंड आर प्लास्टर्ड विद मड. अब जो दीवारें बनाई जाती हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं. ये जो 3 तरफ या 4 तरफ की दीवारें, लकड़ी से ये लोग दीवारें बनाते हैं. ब्रांचेस यूज नहीं करते, बल्कि प्रॉपरली लकड़ी को काट कर उससे दीवारें बनती हैं, और इनको मड से, कीचड़ से प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसमें मजबूती आ जाती है. द रूफ इज स्टिल थैच्ड विद ग्रास. छत के लिए ये अभी भी वही सूखे पत्ते और सूखी घास फूस इस्तेमाल करते हैं. Some of the houses are circular in shape, while others may be square or rectangular. कुछ घर अब भी सर्कुलर शेप में, गोल शक्ल में होते हैं, लेकिन कुछ घर स्क्वायर और कुछ घर रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं. My dear brothers, that's all for today, I think, and you better go through these 4 paragraphs I have explained you. Paragraph number 1, 2, 3 and 4 on page number 55. Go through these 4 paragraphs and try to understand on your own what I have explained you today. We will discuss about paragraph number 5, 6, 7, 8 and 9 tomorrow in the next video lecture, inshallah. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.